Hello aspirants, this is the third video that I will be uploading. This is the full paper discussion because I will be trying to include all the subjects here and I will try to give as much questions in this full paper discussion. I will be also including some current affairs questions and through those questions I will make you understand that how you are going to present the answers there. So once again, for all those who are new to this video, I am Ritesh Shukla and this is Disha Publications full paper discussion for 120 plus mains discussion program. So let's start with this. So the first question which I am about to take is regarding the COVID-19 origin. The first question is, as far as COVID-19 origin is concerned, there are speculations of it being both lab-made virus and naturally developed virus in political and scientific community. What are the evidences that claim these hypotheses of lab-made and naturally developed virus to be true? So this is the most controversial question, and I would say that numerous number of countries were of the opinion that this was lab-made virus, but ultimately no one wanted to just go against a particular country who is quite powerful. So this question is very controversial one, and if you are going to suggest something, you'll have to suggest to what are the hypotheses that has been put out by those who say that this virus is lab made, whereas you'll have to also give account of how the country from where this virus came actually states that it is naturally developed virus and it naturally came into existence rather than it was made by any laboratory. So these two hypotheses must be explained thoroughly in this question, and thereafter you can conclude that natural whether it was natural virus or lab made virus. तो सबसे पहले व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि ये काफी कंट्रोवर्शियल है, तो इसके लिए आपको इसका पॉलिटिकल स्टैंस क्या है, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका स्टैंस आखिरकार क्या है इस वायरस को लेके, उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देनी होगी। पॉलिटिकल स्टैंस ऑफ वर्ल्ड लीडर्स रिगार्डिंग कोविड-19, लैब लीक थियोरी, नेचुरली डेवलप्ड वायरस फ्रॉम बैट्स हाइपोथेसिस। सो आखिरकार अगर कोई देश ये मानता है कि ये लैब मेड वायरस है तो उनका क्या कहना है, अगर कोई देश ये कहता है कि ये नेचुरली डेवलप्ड वायरस है तो उनका क्या कहना है। दोनों के ही पक्ष आपको यहाँ पर रखने होंगे ताकि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आप आंसर कर पाएं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Many scientists believe that SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19 spread from animals to human, known as zoonotic transmission in late 2019. Some researchers have said the virus originated in bats like other similar coronaviruses, but there are several possibilities. A natural emerging virus that infected people outside of a laboratory, a natural emerging virus that was studied inside a lab and leaked, or a virus that was produced as a result of experimentation in a lab. तो मैंने बताया कि आपको इसमें पक्ष रखने होंगे, तो आखिरकार आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दो साइंटिस्ट हु आर रिसर्चिंग ऑन दीज वायरसेस। तो बहुत ऐसे साइंटिस्ट ने, ऐसे वैज्ञानिकों ने ऐसी सूचना दी है अलग अलग देशों में कि आखिरकार ये वायरस तो कोविड-19 ही है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैल रहा है। एक जूनोटिक ट्रांसमिशन भी है, ऐसे कई वैज्ञानिकों का कहना था। लेकिन फिर वहीं पर कई ऐसे रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि ये जो है बैट से ही ओरिजिनेट होता है, लेकिन एक्चुअली में ये वायरस ऑलरेडी कल्टीवेट किया जा रहा था एक लेबोरेटरी में। दैट इज व्हाई a certain point related to hypothesis or lab made virus has also been developed। तो इसको हम इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर देते हैं, और ये इंट्रोडक्शन जितना छोटा जितना क्रिस्प रहे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। A delegation of WHO scientists traveled to Wuhan in January for a 4 week joint study with the Chinese counterparts. In the study group stated that natural zoonotic transmission was the most likely among several possibilities. Those scientists have yet to find samples of in any animals thought to be possible होस्ट। तो आपको ये जानकारी होगी कि WHO साइंटिस्ट, कई साइंटिस्ट टाइम टू टाइम कई बार वुहान जो कि चाइना में है वहां पर विजिट कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि ओवरऑल सारे रिसर्च करने के बाद वो ये बता पा रहे हैं कि ये एक जूनोटिक ट्रांसमिशन था रेदर देन लैब मेड। तो उनका भी यही कहना था। ये एक पक्ष था जिसको सारे देश एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ जो है देश जो कि
कम्युनिस्ट हैं वो जो है थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैव येट टू फाइंड सैंपल्स, उन्होंने भी जो वो रिसर्च वहां पे कर रहे थे उनको भी सैंपल्स वहां पे कुछ ऐसे नहीं मिले जिससे कि वो अपने रिसर्च जो कि जूनोटिक ट्रांसमिशन है उसको कुछ सपोर्ट करने के लिए बता पाए वुहान से। तो ये भी कोई स्पष्ट नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह दिया कि जूनोटिक ट्रांसमिशन ही एक रीजन है जिससे कि ये वायरस डेवलप हुआ था। तो इसको भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना ही होगा क्योंकि आप हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ बताएंगे, ना कि अपने खुद के ओपिनियंस। तो हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ लैब लीक थीसिस। तो अब लैब लीक थीसिस से लेकर जो भी जानकारी आपको है आप वो यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। Always remember the word limit. Always complete your answer within the limit of the words that has been assigned to you, assigned to the question. All right. So after the WHO report on COVID-19 origin, many of the enthusiastic scientists who believed in coronavirus to be a lab-made virus formed groups and did their own study on the documents which they could access online and from government of different countries. One such group called Drastic investigated and produced following evidences to back claim that virus originated in a laboratory. तो मैंने बताया कि कई वैज्ञानिक ऐसी रिसर्च कर रहे थे जिससे कि वो ये जान पाए आखिरकार इसका मेन ओरिजिन या सोर्स क्या है। तो वहीं पर डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट गए, उन्होंने इसको सब्सटैंशिएट किया, लेकिन कई ऐसे एनजीओ थे जिनको इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उन्होंने खुद के किसी सीक्रेटिव मेथड से या किसी सीक्रेटिव तरीके से खुद के ऐसे लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, रिपोर्ट दिए हुए थे डब्ल्यूएचओ साइंटिस्ट द्वारा, उनको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद वो खुद एक रिपोर्ट लेकर आए जिसमें कि वो बताते हैं कि ऐसा जो एविडेंसेस दिए गए हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं ऑन रैशनल ग्राउंड। तो ये जो है ड्रास्टिक करके ग्रुप था, उन्होंने ये बताया कि दैट इज दी the whole report which was presented by the WHO scientist could be wrong। और उन्होंने खुद भी एक ऐसा अपना एस्पेक्ट बताया कि कैसे ये वायरस लैब मेड हो सकता है। There had been 4 incidents of SARS related lab breaches since 2004। इनका कहना था कि 2004 से ही ऐसे कई सारी ब्रीचेस हुई थी और 4 बार ऐसे ब्रीच हो चुके थे उस लैब में ही कोरोना वायरस से लेकर। An improperly reactivated virus was moved from overcrowded virus store to a refrigerator. After the examination of the virus by a student through an electron microscope, the virus outbreak। तो एक स्टूडेंट, इनका कहना था, ड्रास्टिक जो ग्रुप है उनका कहना था कि एक बच्चे जो एक डॉक्टर साइंटिस्ट था वो एक रिसर्च कर रहा था, उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू जब ये वायरस को वो चेक कर रहा था तो उस समय ये आउटब्रेक हो गया। तो ये इनका कहना है रिपोर्ट्स के अनुसार। इन जनवरी 2020 a Wuhan ophthalmologist named ली वेनलियांग। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप आंसर अटेंड कर रहे हैं और if you are skeptic about the name of the person, you can skip it completely। it is not going to cost you your marks। राइट। तो आप जो है ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ऐसे अगर स्पेसिफिक व्यक्ति हैं तो उनका आप नाम स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनका जो पोस्ट है वो किस पोस्ट पे थे, किस डेजिग्नेशन पे थे, आखिरकार वो कौन थे, दिस हैज टू बी वेरी सर्टेन। यू नीड टू बी सर्टेन अबाउट दैट। और यही आपको जो है आपके फैक्ट्स को करेक्ट करता है, आपके कॉन्सेप्ट को करेक्ट करता है, एंड इट विल फेच यू मार्क्स देयर। ऑलराइट। सो हुड try to warn his colleagues that the pneumonia could be a form of SARS was arrested। So Li Wenliang was arrested when he said that the pneumonia which is being caused to other people, क्योंकि उस समय पे किसी को पता नहीं था कि आखिरकार ये किस प्रकार का डिजीज है, तो सभी उसको निमोनिया ही समझ रहे थे। तो इसने बताया कि ये SARS-CoV-2 है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ if the virus spread because of zoonotic spillover, it could have happened directly between humans and animals without any involvement of lab। So this is the basic theory that was put out by the drastic group, and it said that if a transfer of virus from humans to animal has to happen, it could happen at a natural environment rather than in a lab। So इनका जो है ये पोर्शन काफी सेप्टिक है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, और ये बहुत ज्यादा डाउट भी कर रहे हैं कि आखिरकार एक लैब में ऐसे वायरस का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जबकि ये तो नेचुरली ही अकर हो जाना चाहिए था। Scientists found evolving a SARS virus via cell culture to be irrelevant as features like key to transmission and virulence could only be made through new methods। अब साइंटिस्ट ये भी ये कहना चाहते थे कि सार्स जो है ये बिल्कुल भी इररिलेवेंट फीचर है किसी भी वायरस का,
और ये जो है एक्चुअली में कोविड में सबसे मेन फीचर है ट्रांसमिशन का, कुड ओनली बी मेड थ्रू न्यू मेथड्स। ये जो है अभी तक नहीं मिला था किसी प्रकार से ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन ये जो है कंप्लीटली नया मेथड है वायरस का। हाउ डिड दिस मेथड डेवलप्ड इन अ वायरस एंड ऑटोमेटिकली हाउ डिड इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, ये जो है उनका मेन पॉइंट था। एंड दिस वाज बीइंग मेड इन सपोर्ट ऑफ द लैब हाइपोथेसिस। All right. The report that the virus was leaked from a lab, तो इसके लिए ये जो है पॉइंट्स ड्रास्टिक ग्रुप में रखा था। अब हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ नेचुरली डेवलप्ड वायरस फ्रॉम बैट्स। All right. If the virus was bioengineered, the genome sequencing would produce signs of genetic manipulation, which is not found yet. तो मैंने आपको बताया कि आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव रखने हैं कि साइंटिस्ट ने आखिरकार क्या क्या बताया था। तो हाइपोथेसिस जो कि नेचुरल डेवलप्ड वायरस के फेवर में है, उसमें ये कह रहा है कि द वायरस वाज बायोइंजीनियर्ड, द जीनोम सीक्वेंसिंग वुड प्रोड्यूस साइंस ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रकार का साइंटिफिक तरीका है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार वायरस में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, एंड वो जो है प्रोड्यूस ऐसा कर सकता है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी उससे पता चल सकता है, जो कि अभी तक उस वायरस में नहीं मिली थी। इस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ये सारी चीजें, जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं मिली थी वायरस में। ये एक कारण साइंटिस्ट द्वारा बताया गया कि इसलिए ये वायरस जो है वो लैब के द्वारा डेवलप्ड नहीं था, ये एक नेचुरली डेवलप्ड वायरस था, ये उनका कहना था। Furin cleavage on the SARS-CoV-2 spike protein is thought to be bioengineered, but it is not unique to SARS-CoV-2। अब फ्यूरिन क्लीवेज एक साइट है कोरोना वायरस के ऊपर ही, और कोरोना वायरस के ऊपर ये जो फ्यूरिन क्लीवेज जो साइट है, उससे ही ह्यूमंस में जब ये कांटेक्ट में आता है तो सारे प्रोटीन को ये तोड़ लेता है, और तोड़ने के बाद ये काफी ड्रास्टिक कंडीशन पैदा कर देता है ह्यूमन बींग्स के अंदर में, जिससे कि ह्यूमंस की कंडीशन खराब हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि फ्यूरिन क्लीवेज बाकी और सार्स जो सार्स से रिलेटेड वायरसेस थे उसमें पाए जाते थे, तो कोई ये नई बात नहीं थी कि फ्यूरिन क्लीवेज को ऐसा डेवलप किया गया। इट वाज ये अगर ये कहा भी जाए कि ये बायो इंजीनियर्ड है, तो बाकी पहले वायरस में भी ये मिला है, देखा गया है, तो इट कुडंट बी एन एक्सेप्शन। Now, nucleotides in the furin cleavage site that encode for a particular amino acid is not unique to SARS-CoV-2. So again, इनका कहना था कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स फ्यूरिन क्लीवेज पे मिलते हैं वो जो है कोई बहुत नए नहीं है SARS-CoV-2 के लिए, इससे पहले भी कई वायरसेस में वो इस प्रकार से ही पाए गए हैं। न्यूक्लियोटाइड combination encoding for the amino acid is present in other SARS viruses. So this was also the same recognition by the scientists. The 3 lab researchers who were found ill have not been confirmed to become ill because of coronavirus from inside the lab. तो साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि जो भी उस समय बीमारी से ग्रसित थे, जो कि लैब में काम करते थे, वो कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं थे, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो दिस इज आल्सो अ पॉइंट व्हिच सपोर्ट्स दैट द वायरस कुड बी नेचुरली डेवलप्ड, whereas if it would have been of lab made territory, definitely ये सारे जितने भी वहां पे काम कर रहे थे उनको भी कोरोना वायरस ऑब्वियसली होता ही। तो ये दो सब्सटेंसेस हैं जिससे कि आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। देयर आफ्टर कंक्लूजन शुड बी देयर, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, China should allow proper investigation with prescribed international procedures that will help scientists know the reason of spread of virus, which in turn further help in containing these unknown viruses in the future, thus stopping pandemics like these in the future. So China in the start it was hesitatingly allowed WHO scientists because it was not wanting that any other scientists from the outside would should come in the country, because it feared that those scientists will bring coronavirus there. तो चाइना कभी भी ऐसा क्लियर मोटिव नहीं दिखाया जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ साइंटिस्ट वहां पर जाएं और वहां पे क्लियरली सारे रिसर्चेस करें। तो चाइना को ऐसा क्लियर इंटेंशन रखना चाहिए और उन्हें जो है इंटरनेशनल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही वहां पर रिसर्च करने देना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन दैट यू शुड पुट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इज, the second question is related to social issues. Protection of Children from Sexual Offences Act was enacted to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, pornography, but some limits and fundamental defects are surfacing in its legal and procedural methods
elaborate. Now this is about POCSO Act and how the laws involved in the POCSO Act is being ill treated, ill used. So ये इसके बारे में बताना है कि आखिरकार उसमें लॉ जो है क्या वो सही है और वो लॉ किस प्रकार से सही तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. So we will use those laws. We will use certain sections from the POCSO Act and we will point out the policies in it. So ये इस प्रकार से आंसर पुट आउट किया जा सकता है. Now, तो डिमांड आखिरकार क्या है क्वेश्चन का, पॉक्सो क्या है एंड व्हाट आर द लॉज इन द पॉक्सो दैट नीड्स अटेंशन. ऑलराइट, तो पहले सबसे पहले बताते हैं पॉक्सो एक्ट provides offenses and punishment for certain individuals who have committed crime against children below 18 years of age. ऑलराइट, तो आखिरकार ये एक certain age period के बच्चों के लिए है पॉक्सो एक्ट. In this act, both penetrative and non-penetrative assaults have been defined. The act mandatorily validates reporting of cases, failing which may face hefty fine or imprisonment for 6 months. तो पॉक्सो एक्ट का क्या कहना है कि 18 इयर्स के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्ट बनाया गया है जिसमें जिसके द्वारा पाए गए ऐसे व्यक्ति जिसको जो ऐसा ब्रीच ऑफ लॉ करते हैं उनको स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया जाएगा. इन दिस एक्ट बोथ पेनिट्रेटिव नॉन पेनिट्रेटिव ऐसे सारे असॉल्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, ऐसी सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को फाइन किया जा सकता है एंड इनिशियली इट स्टार्ट्स विद 6 months. ऑलराइट, so let's know about the certain laws enacted in the act and policies within the acts. You can write this answer in many ways. Say, for example, there are sections in the POCSO Act. You can point out those sections which are not good in the current situation, and then state that a certain section is ill because of the ill treatment of an innocent. तो इस प्रकार से आप पुट आउट कर सकते हैं. लेकिन मैंने यहाँ पर सेक्शंस को बताया, उसके बाद सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन बताया और फिर जो है उसमें पॉलिसीज बताई है. तो दिस इज आल्सो अ वे टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन फेच बेटर थ्रू दिस. तो अब सर्टेन लॉज इंडिकेटेड इन द एक्ट एंड पॉलिसीज विद इन द एक्ट्स हम इसको जानेंगे. तो द एविडेंस ऑफ चाइल्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इन 30 days ऑफ टाइम फ्रॉम डे क्राइम टुक प्लेस. अब जिस दिन भी क्राइम ऐसा अकर करता है उस दिन से ही एविडेंस जो है लेने के लिए है 30 days तक. इट इज नॉट द पॉलिसी इन द क्लॉज बट ऑन ग्राउंड इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ ऑफिसर हु डिस्पाइट रजिस्टरिंग अ केस मे फेल टू प्रेजेंट इट विद इन 30 days as the final report resolutions take more time than that usually. So this particular policy is in the favor of the victim. और क्या है कि अगर 30 days में ऐसा निकालना है, हमें एविडेंस ऐसा प्राप्त करना है, तो ये फाइनल रिपोर्ट और असर्शन प्रिपेयर करने में 30 days ज्यादा का समय लग जाता है जिससे कि ऑटोमेटिकली लॉ गेट्स ब्रीच्ड. तो इसलिए ये सेक्शन जो है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है. नाउ स्पेशल कोर्ट मस्ट टेक द मैटर एंड कंप्लीट इट विद इन 1 year ऑफ टेकिंग इट. स्पेशल कोर्ट को 1 साल में ही खत्म करना होता है, लेकिन ये ऐसा प्रावधान है. लेकिन इसमें क्या गलतियां हैं? डिस्पाइट the fasting up the pace in providing judgment within 1 year, several false evidences and trivial circumstances may force some people to go free. अब क्योंकि इसे 1 year बहुत ही जल्दी देना है तो evidences और witnesses इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जल्दी से जल्दी जरूरत होगी. तो 1 year में अगर इसको जजमेंट देना है तो जो भी evidences प्रोड्यूस किए जाए, जो भी witnesses प्रोड्यूस किए जाए, हैवी चांसेस हैं कि वो जो है कुछ ऐसे गलत विटनेसेस, गलत एविडेंसेस और गलत चीजें बताकर और फिर लोगों को फ्री कराना चाहें. तो इसलिए भी ये सेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एंड रिकॉग्नाइजेस सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉयज टू. जेंडर न्यूट्रल, तो sexual offenses against boys lack evidence of proof to establish the crime and no substantial method has been advised by the court in this regard. तो अब ये जेंडर न्यूट्रल इसको करना है, लेकिन जो बॉयज के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो इस पे भी स्पेशल एम्फेसिस डालना चाहिए. Section 11-12 of the POCSO Act provides for the provisions regarding sexual harassment and punishment thereof. Section 11 states a person is said to commit sexual harassment of a child when such person with sexual intent and thereon. तो अभी यहाँ तो मैंने section 11 को as it is यहाँ पे include कर लिया, लेकिन if you do not know the exact section of a particular law, you should not put in the answer. आप जो है अगर सेक्शन 11 को पूरी तरह से जानते हैं तो ही उसको लिखिए, नहीं तो आपके मार्क्स उसमें कट सकते हैं. और पूरी तरह से जानने का अर्थ है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ब्रेक नहीं होने चाहिए, या तो आप इंटरप्रिटेशन ही लिख दीजिए, दैट विल फेच यू मार्क्स. ऑलराइट, सो it has been provided that any question which involves sexual intent shall be question of fact
It is a certain fact that the question involving intention is very difficult to prove before the court of law. तो अब सेक्सुअल इंटेंट क्या है उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट पर ही दिया गया है एंड द कोर्ट डिसाइड्स व्हाट इज द सेक्सुअल इंटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल इंटेंट, इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द सेक्शन ऑफ पॉक्सो, सो दैट इज आल्सो प्रॉब्लमैटिक. ऑलराइट, now the object of this act is to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences for matters connected therewith or incidental thereto. तो इस प्रकार का प्रावधान है कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे जो भी जुड़े हुए गतिविधियां होंगी उनसे जुड़े हुए सारे जजमेंट स्पेशल कोर्ट जो है करेगा और वहीं के वहीं वो ऑफेंसेस को भी तय कर देगा. तो इसमें क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट बीइंग टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, दिस डिफरेंशिया इन नो वे हैज अ नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the act. This classification gives way for the thought that raping a child below 16 years is graver offense, whereas on the other hand, raping of a child of 16 or 17 years of age who may have same maturity as some children belonging to the other class is not considered to be a graver offense. This classification thus is unreasonable and hence violative of Article 14. तो यहाँ पर जो एज की जो डिफरेंसेस है 16 इयर्स के पहले के 16 इयर्स के बाद के बीच के जो डिफरेंस है और जो 16 इयर्स के पहले के बच्चे हैं और 16 इयर्स के अबव बच्चे हैं उन दोनों में अलग अलग जजमेंट बिकॉज ऑफ द लॉ किया जा रहा है. तो दैट बिकम्स problematic. Why? Because Article 14 says that equality must be there. और अगर 16 के नीचे जो बच्चे हैं उन पे अगर कोई ऑफेंस किया गया उनके जजमेंट अलग है और 16 के ऊपर जो बच्चे हैं उन पे कोई ग्रेव ऑफेंस किया गया और उस पे जजमेंट अलग है, देन इट इज द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लमेटिक होता है. ठीक है. सेक्शन 4(2) and 6(1) inserted by the POCSO use the words imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person. अब this new insertion of word leads to misunderstanding that latter mentioned sections do not provide for the punishment of life imprisonment for the remainder of natural life of that person. तो इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है. इसकी वजह से क्या होता है कि आखिरकार ये नेचुरल लाइफ जब तक अ पर्सन इज एग्जिस्टिंग तब तक के लिए है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब ओवरऑल जो है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है उस तब तक है. इस बीच का इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट ही फाइनली डिसाइड करता है एंड दिस हैज टू बी क्लियर्ड इन द judgment in the law. All right. The new amendment made in the Act by POCSO Act of 19 includes Section 6(1), which was inserted substituting Section 6 of the Principal Act, and it provides death penalty as the maximum punishment for aggravated penetrative sexual assault. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? The introduction of death penalty is more problematic in such cases where the offender is a family member of the victim or the survivor. 96% of such cases does have family members as convicts, so it becomes troubling for rest of the family. अब ये जो एकमात्र सेक्शन है इससे ये होता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर ही इंक्लूडेड है तो उसके लिए भी ग्रेव पेनल्टी लगेगी ही और वो ग्रेव पेनल्टी इवन डेथ तक जा सकती है. तो एक ये सोशल प्रॉब्लम हो जाएगा कि आखिरकार जो फैमिली मेंबर है वो जो है डेथ हो जाएगा तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. तो दिस लॉ मस्ट आल्सो बी दिस सेक्शन मस्ट आल्सो बी डाइल्यूटेड विद समथिंग डिफरेंट और सबसे ज्यादा केसेस भी इसी प्रकार के होते हैं तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना होगा. तो ओवरऑल ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि चेंजेस की जरूरत है, जिसमें कई पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए एंड इवन द जजेस, इवन द सुप्रीम कोर्ट और इवन द अदर हायर कोर्ट शुड see over all these things and make a recommendation of improving these laws through all these sections. All right. Now let's conclude the answer. It is true that loopholes can be created, however good and efficient the law is. The POCSO Act is a comprehensive law which was initiated to protect the children from sexual abuse and exploitation, considering the welfare of the people. Legislature is making laws, and in no way would the intention of the legislation would be to make an inefficient and uncertain law. क्योंकि संसद ही कानून बनाता है तो कभी ये तो दिमाग में नहीं रख के बनाएंगे कि वो जो है थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाए, क्योंकि लॉ बनने में भी काफी टाइम लगता है, उसके पढ़ाई में भी काफी टाइम लगती है. However, the Amendment Act is arbitrary and is against the fair procedure of law. At certain point, it is favoring the offenders. आखिरकार संसद जो है ऐसे कानून जब बना रहा है तो दे आर थिंकिंग अबाउट द विक्टिम, but because they are putting out all the things in support of the victims, some or the other way or the technical understanding of the matter is not getting very clear with the parliament. That is why ऐसे sections बन जाते हैं और फाइनली जब ये चीज कोर्ट के पास जाता है तो वहां पर कई लूप होल्स की मदद से ऐसे जो ऑफेंडर्स हैं वो बच जाते हैं.
तो ओवरऑल इन सेक्शंस के उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा और जितनी भी गलतियां हैं उसमें थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करके अनदर काइंड ऑफ लॉ शुड बी पास दैट इज नॉट रिकमेंडेशन बट दैट शुड बी डन ऑलराइट. This is the overall answer for this particular question, and it is also a very nice question because I do believe that questions related to such kind of acts are very much prominent these days with UPSC, so you'll need to focus on this.